Hindus cried along with the Americans. But who enjoyed? People still enjoy. They want to name a road in India in the name of Osama bin Laden. They have no place in America, they have no place in India, and they have no place on this beautiful green earth. Hey, hey! Ho, ho! RSS has got to go. Hey, hey! Ho, ho! अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, साझा करने वाला हूं, आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं, वो बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण खबर है। जिस तरह से देश में नफ़रत का माहौल सिर्फ एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाकर, मस्जिद, मंदिर और दीगर चीज़ों को टारगेट बनाकर नफ़रत फैलाई जा रही थी, नेता, सियासत, सब चीज़ इस तरह से जो पूरी तरह से एक प्लान बना हुआ है कि एक विशेष समुदाय को गाली दो और जो है अपनी सियासत चमकाओ। अब ये जो है नफ़रत की जो राजनीति है, ये हिंदुस्तान के नाम पर और हिंदुओं के नाम पर जो है विदेश में भी होने लगी है। और मैं बात जिस देश की कर रहा हूँ वो सबसे डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। अमेरिका में हिंदुस्तान के नाम पर सियासत हो रही है। और किस तरह की सियासत हो रही है आप सोचेंगे, जब आपके सामने ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी तो आप अचंभित हो जाएंगे। आप जो है खुद हैरत करेंगे कि इस तरह की जो है घटिया हरकतें किस स्तर पर काम कर रही है। आपको पता होगा कि जो अमेरिका ने इस तरह की खबर आई थी कि अमेरिका ने जो आरएसएस और दीगर तंजीमों पर जो है पाबंदी लगा दी है, कानून पास किया है। और देखा होगा कि हिंदुस्तान में भी आपने योगी आदित्यनाथ की पुलिस जो थी यूपी की, उन्होंने जो है उन पर जो है यति नरसिम्हानंद जो नफ़रत के चलते फिरते भंडार हैं, उन पर जो है पाबंदी लगा दी कि वो जो है धर्म संसद नहीं कर सकते। और इस तरह की चीज़ें जो है अमेरिका में भी पनपने की कोशिश कर रही थी, तो अमेरिका ने पाबंदी लगा दी। लेकिन वहाँ पर किस तरह से भगवाधारी और संघ मिजाज के लोग और आरएसएस के जो नफरती चिंटू हैं, उनके मिजाज के लोग किस तरह से नफरत फैला रहे हैं, आप जरा ये वीडियो सुन लीजिए जो निकल कर सामने आ रहा है। And destroyed by the Muslims. I'm clearly stating here, okay, and destroyed. And right now, same things are happening. When the things happened over here for 9/11 in New York, you know who cried? Hindus cried along with the Americans. But who enjoyed? People still enjoy. They want to name a road in India in the name of Osama bin Laden. And there are so many those incidents which are happening like every day. You talk about any rape in the country that is happening by all the Muslims over there. And whenever there is this kind of resolutions happen, they will always happen during the time of 9/11 time. They want to show that they are suppressed by one hand, and they want to create all the terrorism all over the world. So my only thing is that I'm really sorry that I'm speaking a bit loud, because this is really, I'm really getting angry on all those things. Even though we have been like providing the food and all those things, helping the complete community, you see all the CEOs of this, like most of the big companies, they are trying to bring everybody together. And we are trying to help everybody with all the positive things. And what we are getting in return, whenever the 57 countries all over the world are Muslims, but whenever any bad thing will happen, where do they go? They will either come to America or they will go to India, to some place, so that they can destroy it bigger with their own things. You know, there's a word called love jihad that was coined by one of the church in India. It was not coined by Indians. It was coined by the church in India, which said that these Muslims, they are getting all the girls of all the Christians, and they're trying to convert all of them. And after that, they get the babies and they kill the girls. And that's what keeps happening. And that is happening every day. If you see the newspaper, you will see one or the other crime. People getting murdered. You talk about the rapes. Thank you, sir. तो आपने वीडियो देखा जिससे आपको ये अंदाजा हो गया होगा, जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहा है कि जब यहाँ पर 9/11 का हमला हुआ तो आप लोग जो रो रहे थे, दुख का माहौल था, उसमें जो आप लोगों के साथ साथ हिंदुस्तान के जो हिंदू थे वो पूरी तरह से शरीक थे और रो रहे थे। वही दूसरे लोग, दूसरे धर्मों के लोग, खासतौर से मुस्लिम समुदाय के बारे में जो बात हो रही है, वो लोग खुशियाँ मना रहे थे, उसामा बिन लादेन के नाम पर सेलिब्रेशन कर रहे थे। तो आप अंदाज़ा कीजिए किस तरह की घटिया राजनीति ये लोग कर रहे हैं, किस तरह की घटिया इस तरह की
नफरत ये फैला रहे हैं। कौन से धर्म के लोग जो आतंकवाद और टेररिज्म को क्या कहते हैं उसका हिमायत करता है और उसको जो है अच्छा समझता है। मैं समझता हूँ दुनिया का छोटा से छोटा धर्म जिसका फैलाव बहुत छोटा हो वो भी है उसको जो है आतंकवाद और टेररिज्म के खिलाफ होगा और उसकी जो है किसी भी तरह से हिमायत नहीं करता होगा। लेकिन ये लोग इनकी घटिया सोच और घटिया राजनीति के स्तर में इस हद तक डूब चुके हैं कि इन्हें बस एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि मुसलमान जो है आतंकवाद के नाम पर खुशी मना रहा था। आपके सामने है और आप इस सब चीज़ को, इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि कभी किसी भी मुस्लिम ने इस चीज़ पर खुशी नहीं मनाई होगी कि वो आतंकवादियों के नाम पर या आतंकवाद का जन्मदिन या किस तरह की कोई चीज़ घटिया हरकत नहीं की होगी। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जो लव जिहाद है, जो ये शब्द है, ये हमने नहीं दिया, ये हिंदुओं ने नहीं दिया, ये वहाँ के ईसाइयों ने दिया है। क्योंकि किस तरह से लोग जो है वहाँ पर जो मुसलमान थे वो ईसाई लड़कियों को फंसाते थे जाल में, प्यार प्रेम के जाल में, और उनसे बच्चे पैदा करते थे और उसके बाद उनको जो है मार देते थे। इस तरह के घटिया और संगीन आरोप लगा रहा है ये संघी मिजाज का आदमी, इन लोगों का काम ये है कि नफरत फैलाओ और राजनीति करो, नफरत फैलाओ और राजनीति करो। इसी तरह की घटिया और ओछी हरकतें हैं जो आपने देखकर, जो तकरीबन 2 मिनट 20 सेकंड के आसपास का जो वीडियो है, इसको देखकर आप ये समझ गए होंगे दोस्तों। अब वही आपको बता दें कि जो उत्तर अमेरिका है, यूएस है, उसमें भी लोगों ने इसके खिलाफ जो है आरएसएस और एचएसएस, जो वहाँ का जो राष्ट्रीय संघ का जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसके खिलाफ उतर आए हैं। The current regime in India is viciously oppressing minorities, especially Muslims, with its brutal bulldozer politics. Thanks to the bulldozer in Edison, elected officials across this whole state now realize that the oppression of Indian minorities is an issue of concern, not just all the way over there in India, but right here in India. तो अब इन लोगों को जो है वहाँ पर भी किस तरह से मुंह की खानी पड़ रही है, जो यहाँ वहाँ इनका जो इंटरनेशनल, इनका जो संघ है, इनकी जो एक तरह से कह लीजिए ब्रांच है HSS USA, उस पर भी किस तरह से उसके खिलाफ लोग उतर आए हैं। जो पीटर फ्रेडरिच हैं, ये क्या कुछ कह रहे हैं और किस तरह से उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसका अंदाज़ा आप इस वीडियो से कर सकते हैं। और जिसमें वहाँ पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ख़ास तौर से इस बात को कह रहे हैं किस तरह से मोदी जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उनकी तरफ इशारा कर और इस तरह की किस तरह से वहाँ पर माइनॉरिटीज़ को डराया और धमकाया जा रहा है बिल्डोजर राज के जरिए, इस तरह की चीज़ें। और बिल्डोजर राज को फर्स्ट स्टेप बचाकर आगे जो है उस तरह के जो है इन्होंने ये आरोप लगाए हैं कि इनका जो है हिंदुस्तान में बुलडोजर से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। और इसी तरह की चाल जो है यूरोप में चलना चाह रहे हैं, खास तौर से न्यू जर्सी का जो है ताल्लुक से ये बात कर रहे हैं। और इसके ये वीडियो है जो आप देख सकते हैं, पहले देखें, उसके बाद हम इसका जो है इसके बारे में बात भी करेंगे। और इन्होंने जो खुद अपने जो है राय रखी है वो हम आपके सामने पेश करेंगे। They have no place in America, they have no place in India, and they have no place on this beautiful green earth. Hey, hey! Ho, ho! The RSS has got to go! Hey, hey! Ho, ho! The RSS. आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से वहाँ पर ये लोग जो है ज़मीनी स्तर पर उतर के आरएसएस के खिलाफ, एचएसएस के खिलाफ और वहाँ इनकी जो नफरत की जो सियासत चल रही है उसके खिलाफ किस तरह से ये लोग उतर हुए हैं और वहाँ पर जो है नाराबाजी कर रहे हैं। उसको आप इसको देखकर अंदाज़ा कर सकते हैं खुद ही। अब मैं आपको जो इनका जो ट्वीट है वो आपको पढ़कर सुना देता हूँ। इलेक्टेड ऑफिशियल्स all across New Jersey know that the bulldozer is a symbol of a hate as in hashtag Modi is India. मतलब सारी दुनिया इस बात को जानती है सीधे तौर पर कि जो है बिल्डोजर एक नफरत का एक पहला सिंबल है, एक निशान है मोदी के इंडिया में। They have condemned it. That's the first step and the next step, as I told teen के NJ गवर्नमेंट इज़ फॉर NJ, यानी इनका कहने का मतलब है दूसरा इनका जो कदम है वो न्यू जर्सी टू टर्न इट्स बैक ऑन HS USA एंड द US विंग ऑफ इंडियाज फैसिस्ट RSS पैरामिलिट्री। या RSS पैरामिलिट्री, ये पैरामिलिट्री कहते हैं उसको RSS को, और जो फासिस्ट उसको जमात को बताते हैं और कहते हैं कि उन्हीं का जो ये विंग है जो USS में काम करता है। अब उसके अलावा दोस्तों ये न्यूज़ लीड इंडिया है, इन्होंने भी लिखा है टीनेक का हिंदू विरोधी प्रस्ताव अमेरिका में हिंदुओं के खिलाफ और अधिक नफरत पैदा कर सकता है, न्यू जर्सी के सांसद को चेतावनी दी है। अब ये जो खबर है, हमने आपको बताया कि जो अभी कुछ दिन 1-2 दिन पहले खबर गर्दिश हो रही थी कि भाई अमेरिका में जो है RSS और उसकी जुड़ी तंजीमों पर पाबंदी लग गई है, उसका जो प्रस्ताव था उसके जो वहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे या क्या कहते हैं
सांसद थे, उन्होंने इसकी चेतावनी दी है कि जो हम कंडेम करते हैं और जो इस तरह के जो प्रस्ताव है इसका उन्होंने मुखालिफत की और कहा कि इस तरह के प्रस्ताव जो है न्यू जर्सी में एक दूसरे धर्म के खिलाफ जो है नफरत पैदा करेंगे। ये बात दोस्तों अपनी जगह दुरुस्त है कि हर एक को धार्मिक आज़ादी हर जगह होनी चाहिए, उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन नफरत की राजनीति करना और नफरत की जो सौदागरी करना ये कहाँ तक और किसी भी हाल में उचित नहीं हो सकती। इस बात को जो है अंदाज़ा आप कर सकते हैं, ख़ास तौर से जो इन्होंने ये कहा है, जो हम आपके सामने दिखा भी रहे हैं एक एक करके। अब ये जो साहब है महाशय, इनको देख लीजिए कि जो न्यू जर्सी lawmakers Raj Mukherjee condemned anti-Hindu resolution passed by Teaneck Democratic Municipal Committee। तो इन्होंने इसको कंडेम किया है। उसके बाद जो है ये असेंबलियन राज मुखर्जी, इनका जो है ट्विटर भी है, ट्वीट भी है, इससे इन्होंने ट्विटर है हैंडल है, इससे इन्होंने ट्वीट किया है, कंडेम द टीनेक एंटी हिंदू रेजोल्यूशन, द टाइज दैट बाइंड द वायरस साउथ एशियन diaspora communities in the US are much stronger based on shared immigrant experiences than the lines that divided their forebears. Let's promote religious freedom and mutual respect। मतलब धार्मिक आज़ादी तो हर जगह होनी चाहिए, अपने धर्म को जो है धर्म के ताल्लुक से आदमी फॉलो करे, रूल रेगुलेशंस फॉलो करे, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं जिस तरह से रात दिन नफरत फैलाकर, नफरत की सौदागरी कर कर ये लोग किस तरह से नफरत फैला रहे हैं और जो इंडिया से भी बाहर निकलकर विदेश में भारत को नाम को बदनाम कर रहे हैं और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं कि जो है लव जिहाद और 9/11 पर मुसलमान खुश था, इस तरह की चीज़ें घटिया हरकत करना ये कहाँ तक उचित है, इसका अंदाज़ा आप भी कर सकते हैं। हम ही इसको गलत या सही नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि जो नफरत की राजनीति है वो नहीं चल पा रही है, तो इसी वजह से इन्होंने इसको इंटरनेशनल लेवल पर इसको जो है मोड़ दे दिया है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि देश में रहते हुए एक तरफ आजम खान पर कार्रवाई हो जाती है, वहीं दूसरी तरफ जो है यतीन सिमानंद जैसे लोग रात दिन नफरत फैला रहे हैं और इस बात पर बजिद हैं और जिद करके बैठे हैं कि हम जो है धर्म संसद करेंगे और इस चीज़ को इसको कोई रोक नहीं सकता। रात दिन मुसलमानों के खिलाफ, मदरसों के खिलाफ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के खिलाफ और जो है मुस्लिम और विशेष समुदाय, खासतौर से माइनॉरिटीज़ को, यहाँ तक कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, जिसके बारे में हिंदू मुस्लिम सिख समुदाय सभी जिसका रिस्पेक्ट करते हैं, जो देश के राष्ट्रपिता कहलाए जाते हैं, उन सब के बारे में भी इन्होंने अभद्र शब्द कहे और हैट बयानबाजी की, जो नफरती बयानबाजी की, लेकिन उसके बावजूद वो अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। उन पर कार्रवाई होती है, वो फिर छूट जाते हैं छोटी मोटी, और वही तो इस तरह का माहौल जो है वो पूरे देश नहीं, देश के बाहर भी जो है इस तरह के नफरती लोग बना रहे हैं, जिस पर जो है अमेरिका का डंडा चला है और अमेरिका ने उसको जो है पूरी तरह से वहां पर बताया जा रहा है कि उसको बैन कर दिया है और उस पर जो है प्रस्ताव पास कर दिया है। तो दोस्तों इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ ये था ताकि आप अपने आसपास नफरती लोगों से सावधान रहें, और ख़ास तौर से हमारे आपसे निवेदन है कि दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खास तौर से हमारे फेसबुक पेज न्यूज़ हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अवेयर रहिए, सतर्क रहिए और सावधान रहिए और अपनी हिफाजत कीजिए इस नफरती लोगों से।